Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your SST, that is the third chapter of the geography portion, which is natural resources, forest and wildlife. In our last chapter of this geography, we had studied about the natural resources, and which was the first two chapters of this geography portion. In the first chapter, we had studied about the resources that can be natural and the man-made. Then after that, we had seen that types of resources can be biotic resources, abiotic resources. Then after that, we had the classification of the resources on the basis of the developed resource, renewable resource, then non-renewable resources. Then we had studied actual resources, potential resources. Then later on we had also studied about the localized resources, humans and the use of the resources. Then in the next chapter, that is the second chapter of your geography, we had studied about the natural resources, that is your land, soil and water. In land, we had studied about the mountains, plateaus, plains. Then later on, we had studied about the natural vegetation of India. Then in that, we had studied that how the land is used, the soil resources, how it is there in India, what kind of soil is present in India. And then later on, we had studied that how this soil erosion takes place and how the soil conservation can be done in context of India as well as the world. Then after that, we had studied about the water resources, what were the water resources and how we are taking care of our water resources and how we are protecting it from the pollution. In today's class, we are going to start the third chapter, which is the extension of these two chapters only. And in this chapter, we are going to study about the forest and the wildlife. Again, these are the natural resources. And this natural vegetation, that is your forest, basically it refers to the plants growing naturally in any region. देखो ये है इसकी definition. What do you mean by the natural vegetation? It refers to the plants growing naturally in any region controlled by the climate of the रीजन. सो बेसिकली आपका जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो प्लांट्स रेफर किए जाते हैं जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं किसी भी रीजन में. और वो जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपके कंट्रोल्ड होते हैं वहाँ के क्लाइमेट के वजह से. अच्छा, ये जो क्लाइमेट है ये आपका कई सारी वजह से वेरिएट करता है और इस वेरिएशन की वजह से आपके जो फॉरेस्ट हैं वो भी अलग अलग, जो नेचुरल वेजिटेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो भी अलग अलग देखने को मिलती है. ये जो हमारा क्लाइमेट है ये बेसिकली आपका इफ़ेक्ट करता है सनलाइट से. जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है उस एरिया में कितनी पड़ रही है, देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी वहाँ पर रेनफॉल हो रही है. देन उसके बाद ये आपका जो एल्टीट्यूड आपके क्लाइमेट को भी इफ़ेक्ट करता है कि जितना ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड होगा उतना ठंडा क्लाइमेट होगा और जितना लोअर एल्टीट्यूड होगा उतना गर्म आपका जो वहाँ का रीजन है वो क्लाइमेट वहाँ का उतना गर्म होगा. इस बेसिस पर कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट और अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल पड़ती है और अलग अलग तरह के एल्टीट्यूड हैं. इसके बेसिस पर हम अपने पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में जो भी फॉरेस्ट हैं उनको हम वेरियस हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट हेड इज़ योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अगेन ये जो आपका नाम है इससे पता चलता है कि ये फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन रहेंगे. और कोई भी चीज़ देखो एवरग्रीन तभी होती है जब वहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही हो. तो बेसिकली अगर आपको इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं भी पता है और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो उसमें आप एटलीस्ट ये लिख सकते हो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट तो वही होगा जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी,
तो बेसिकली ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। अगेन ट्रॉपिकल रीजन, हम उस रीजन को कहते हैं जो इक्वेटर के आसपास होता है। सो बेसिकली ये जो आपका फॉरेस्ट है ये आपका इक्वेटर के आसपास पाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पर जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उन्होंने इस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और इस वजह से यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो हार्डवुड स्पीसीज़ होते हैं। मतलब वो हार्डवुड क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, अगर सॉफ्ट वुड होगा, जैसे जिस वुड से पेपर बनता है, अगर वो प्लांट यहाँ पर लगाया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो उसमें वो सड़ जाएगा, इट विल गो रॉट, वो उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे। बट यहाँ पर जो नेचुरली जो ग्रो करते हैं ट्रीज़ वो हार्डवुड होते हैं। क्यों? ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके। अगेन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये नोट करने की है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितने तरह के आपके ट्रीज़ होते हैं, या आपको नाम पद पूछा जा सकता है कि नेम द ट्रीज़ दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि महोगनी, देखो आप इसका दिया हुआ है इसमें, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, ये सारे के सारे ट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसका एरिया कहाँ पर है? सो द एरिया इज द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका, जायर बेसिन इन अफ्रीका एंड मलेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। देखो, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, अगेन आपका ये जो नाम है ये बता रहा है कि ये जो फॉरेस्ट होंगे वो कहाँ पर होंगे? ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, और ट्रॉपिकल रीजन में होने के साथ साथ यहाँ पर बारिश जो होगी वो मॉनसून के टाइम में होगी। एवरग्रीन होता तो देखो वहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, हैवी रेनफॉल होता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, और यहाँ पर फॉरेस्ट कब कब होती है? टाइम से होती है, दैट इज़ योर इन दी मॉनसून। अगेन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट आपके इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, साउथ चाइना, लाओस, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारे यहाँ पूरे के पूरे 12 मंथ्स बारिश नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के टाइम पर ही बारिश को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आप कह सकते हो कि सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट मतलब हमारे यहाँ बहुत एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ती है, बहुत एक्सट्रीम ठंड भी पड़ती है। इस वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इस तरह के ट्रॉपिकल मॉनसून के फॉरेस्ट में आपको जो फॉरेस्ट होते हैं वो डिस्यूडियस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, और इनके यहाँ जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं वो बेसिकली होते हैं साल, देवदार, बैम्बू, यूकलिप्टस, सैंडवुड एंड अकेशिया। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ ऑफ दी ट्रीज़ हैं जो आपको इनके यहाँ इस जो आपका जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगेन देखो, ये जो इसकी हेडिंग है वो क्या बता रही है? टेम्परेट, मतलब ऐसा एरिया जो टेम्परेट रीजन में आता है, और वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन होगा? एवरग्रीन होगा। अगेन ये जो टेम्परेट रीजन के जो फॉरेस्ट है ये मिक्स्ड वैरायटी के होते हैं। देखो यहाँ पर जो टेम्परेट रीजन है, जो वार्म लैंड्स हैं जैसे कि साउथ चाइना, जापान, ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, उरुग्वे एंड साउथ ईस्ट यूएसए, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो टिम्बर मिलता है, ठीक है। और ये जो टिम्बर होता है, इन जगहों पर जो टिम्बर मिलता है वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जैसे कि
ओक है, पाइन है, मलबरी है, वॉलनट है, कैम्फर है, बैम्बू है, ये सारी की सारी जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। देन यहाँ पर जो समर्स होते हैं वो उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत हैवी होती है। इसलिए देखो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन होते हैं। अगेन यहाँ पर आपके फॉरेस्ट ने रेन ने काम किया और आपका फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट बन गया। To this we come to an end of today's class. For the discussion of the further chapter we are going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.